بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق بازی جس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 31ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میں فرض کرا تو ظالم ہے، محبوب جو ہے تینوں سجدہ ہے، میں فرض کرا تینوں فرصت نہیں تے نہ ہووے، محبوب جو ہے تینوں سجدہ ہے، تہکو گل بس فرض چکر، میں کچھ بھی نہ انسان تے ہاں۔ یک طرفہ محبت میں زور سامنے والے پہ کب چلتا ہے؟ جب کوئی خود آگے بڑھ کے محبت کے رنگ سے روشناس نہ کروائے تو اسی شخص سے جڑی محبت دل کے خانوں کو نوچتی رہتی ہے۔ یک طرفہ محبت کا گھاؤ ہر موسم میں لو دینے لگتا ہے، تہی دامنی کا احساس کچوکے لگاتا تھا۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا اسے کالر سے پکڑ کر اس قدر جھنجھوڑے کہ ساری کی ساری وفاداری جھڑ کے رہ جائے۔ محبت میں اظہار کا مان نہ ہو تو وجود گیلی لکڑی کی طرح سلگتا رہتا ہے۔ وہ بھی سلگ رہی تھی، بھسم ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے زندگی اور موت کے بیچ بہت کم فاصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی والوں کی بخشی ناپسندیدہ زندگی گزارنا موت سے بہتر فیصلہ تھا اس کے لیے۔ ماں کی کمی شدت اختیار کر گئی تھی۔ ماں ہی تو ہوتی ہے جس سے ہر بات بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ حویلی میں شاید ہی کوئی اس کے درد سے واقف تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ موسم کے درد و سرد و گرم کا۔ کیوں بولائی بولائی پھر رہی ہو؟ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ دی جان دلان میں گاؤں کی عورتوں کے مسائل سن رہی تھی، جن مسائل کا حل ان کے پاس ہوتا تھا اسی وقت اس کا حل بتا دیتی تھی۔ جو مسائل باہر کے ہوتے تھے انہیں چودھری حشمت تک منتقل کر دیتی تھی۔ انہی وجہ سے گاؤں میں حویلی والوں کی عزت دن بدن بڑھتی تھی۔ عورتیں روز ہی حویلی میں اپنے اپنے دکھڑے لیے موجود تھی۔ اشال کتنی ہی دیر سے زمرد بیگم کو عورتوں کے بیچ ان کے مسائل سلجھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا چوتھا چکر تھا۔ جب آخری عورت بھی انہیں سلام کر کے نکل گئی تو زمرد بیگم نے اس کی بے چینی کو دیکھ کر اسے قریب بلایا تو وہ قریب آ کر زمرد بیگم سے جڑ کے بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ زمرد بیگم ماتھا چھو کر حرارت محسوس کرنے لگی۔ زندہ ہوں، آج ماں بہت یاد آ رہی ہے بے جان، تلخی سے کہہ کے آواز میں نمی گھل گئی۔ ماں صدقے کیوں یاد آ رہی ہے؟ زمرد بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ہولے ہولے بال سلجھانے لگی۔ حویلی میں سبھی اپنی اپنی ماں سے لاڑ اٹھواتے ہیں، ایک میں ہی۔ اس کی آواز حلق میں اٹکتے نمکین گولے کی وجہ سے بند سی ہو گئی۔ زمرد بیگم کو محرومی کی کھوک میں پلی اشال سے ہمدردی تھی۔ والدین کی کمی سے اس کی شخصیت میں جو محرومی آئی تھی انہیں اس کمی کا بخوبی احساس تھا۔ ہر بار زیادتی ہوتی تھی، مگر اب جو ظلم ہونے جا رہا تھا اس سے اختلاف کے باوجود وہ چودھری حشمت کو ان کے فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ سالوں حویلی پہ حکمرانی کے باوجود وہ بھی چودھری حشمت کو ان کے فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ میں ہوں نا، ہر بات مجھ سے کر لیا کرو۔ زمرد بیگم نے اپنی گود میں اس کے آنسوؤں کی گرمی محسوس کی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ خود کو بہلاؤ میری بچی، جانتی بھی ہو حویلی میں عورت کو منہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہاں تو بھی منزہ کی طرح؟ زمرد بیگم نے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی، جیسے کچھ غلط منہ سے نکل گیا تھا۔ منزہ؟ کون منزہ دی جان؟ آنسوؤں کو بھول کے سر اٹھا کر وہ ان کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ زمرد بیگم مشکل میں پھنس گئی تھی، لیکن بھلا ہو چودھری اسفند کا جو انہیں مشکل سے نکالنے کو وہاں موجود ہوئے۔ السلام علیکم دی جان۔ چودھری اسفند کی بارہوب آواز پر اشال جہانگیر اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی، شانوں پہ موجود دوپٹہ سر پہ لینے لگی۔ سلام چچا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ سامنے موجود دوسرے پلنگ پہ بیٹھتے اسفند خان نے خوش دلی سے احوال دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کے رہ گئی۔ دی جان اپنا پاسپورٹ دے دیں، ٹکٹ کنفرم کروا لوں؟ کمرے میں ہے، بھجواتی ہوں کسی کے ہاتھ۔ زمرد بیگم اس صورتحال سے بچ نکلنے پہ شکر ادا کرتی دوپٹہ سر پہ جمانے لگی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں دی جان؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سب بھول کے سوال کرنے لگی۔ ہاں بچے، دی جان، میں اور تمہاری چچی عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، سہولت سے جواب چودھری اسفند نے دیا تھا۔ چچا جان، کعبہ کی زیارت کے لیے مجھے بھی لے چلیں پلیز، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔ چودھری اسفند ایک نظر اشال جہانگیر کے ملتجی چہرے پہ ڈال کے زمرد بیگم کو دیکھنے لگے۔ زمرد بیگم جو اٹھ کر پیروں میں چپل ڈالنے لگی تھی پھر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزاری ہے، انہیں تو کبھی احساس نہیں ہوگا بھائی کوئی ہے نہیں۔ وہ دل گرفتگی کے احساس سے چپ ہو گئی۔ اداس نہیں ہوتے بچے، جاؤ تم بھی اپنا پاسپورٹ لے آؤ، چلو ہمارے ساتھ۔ چودھری اسفند کو اس کی زود و رنجی برداشت نہ ہوئی تو فوراً حامی بھر لی۔ تھینک یو سو مچ چچا جان۔ پہلے تو اسے اپنی سماحت کا دھوکہ لگا، پھر ممنونیت کے احساس سے آنکھیں نم ہو گئی۔ آلویز ویلکم بیٹا، جاؤ جلدی سے لے آؤ۔ وہ مہربان مسکراہٹ لیے جلدی کے لیے اصرار کرنے لگے تو وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئے۔
असफन, तुमने सोचे समझे बिना इशाल को साथ लिए जाने की हामी भर ली। तुम्हारे बाबा जान शायद इस बात को पसंद न करें। सुमर्द बेगम ने पुरसोच अंदाज में जैसे उन्हें अपने फैसले में तरमीम का इशारा किया। बाबा जान से बात कर लूँगा बेजान। बच्ची ने कौन सा किसी नाजायज़ ख्वाहिश का इजहार किया। जहांगीर भाई का इशाल के साथ रवैया हमारे सामने नहीं, उन्हें कभी इस मासूम पर तरस नहीं आया, और अब उस मासूम पे जो जुल्म होने जा रहा है मुझे उससे भी इख्तलाफ है। लेकिन चौधरी असफन लब भींचकर चुप हो रह गए। उनके हाथ पांव भी हवेली के असूलों ने बांध रखे थे। चौधरी हशमत की हुक्म अदूली नहीं कर सकते थे। जुमर्द बेगम भी चुप सी रह गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चौधरी असफन इतनी आसानी से उसे साथ ले जाने पर राज़ी हो जाएंगे। तभी जल्दी से पासपोर्ट उनके हवाले करने को दौड़ी, मबादा उनका इरादा बदल जाए। आराम से, तबीयत ठीक हुई नहीं कि तुमने ओलंपिक की रेस में हिस्सा ले लिया। सीढ़ियों पर ही उसे सम्मान अफंदी मिल गया। उसकी तेज़ रफ्तारी देखकर ग्रिल से लग गए। मतवक्का टकराव से बचते सवाल कर गया, अपने काम से काम रखो। मुँह चढ़ा के लटकता दुपट्टा शानों पे बराबर करने लगी, वरना कदमों तले आते दुपट्टे से उलझ कर खुद उसके गिरने के इम्कानात खासे रोशन थे। क्या मुल्क छोड़ के भाग रही हो? हाथ में पासपोर्ट देखकर उसने हैरत का इजहार किया। हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ? तड़क के बोली। वाकई? उसके साथ स्टेप उतरता वो हैरान था। खबरी को अपनी बेखबरी पे हैरानी हुई। उसे हैरान छोड़कर इशाल जहांगीर तेज़ी से बाकी की सीढ़ियाँ तय करके दालान में आ गए, जहाँ चौधरी असफंद अकेले बराजमान थे। ये ले चाचा जान, पासपोर्ट। उसने झट उनके हजूर पेश किया। तब तक समहान अफंदी भी दाखिल हो चुका था। आपने बुलाया था डैड? इशाल को मुकाबिल देख के वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। समहान, गाड़ी निकालो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। चौधरी असफंद के बुलावे पे आया। समहान अफंदी तमतमाते चेहरे के साथ पासपोर्ट को देखती। इशाल जहांगीर को देख के समझ गया कि वो कहाँ जा रही है। जी डैड, आप आ जाइए, मैं तब तक फ्यूल वगैरह चेक करता हूँ। वो मुअद्दिब होके पलट गया। चल कुकड़ा। कैसे हैरान रह गया। उस घड़ी हवेली से रिहाई की खुशी ही इतनी थी कि वो हर बात को फरामोश करके उसकी हैरान शक्ल याद करके महजूज होने लगी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई साहब, जो आप लोगों ने रातों रात शहर छोड़कर हमेशा के लिए हवेली जा बसने का फैसला कर लिया? बच्चियों के साथ ऐसे छोटे मोटे मामला तो होते रहते हैं। साहबा और नरमीन आई बैठी थी। नरमीन साहबा के इसरार पर आ तो गई थी, लेकिन किसी कदर बेजारी का मुजाहरा करके अपने सेलफोन में बिजी थी। गो के हवेली लौटने का फैसला साबका साहनियत से पहले का था, लेकिन साहबा तलहा वाले वाक़ये को उनकी वापसी से जोड़ के कहानी को नया रंग देना चाह रही थी। अंदाज मायनी खेज था, जैसे शनाया की चोरी पकड़ी गई हो। चौधरी बख्त इस वाक़ये से लाइल्म थे। साहबा के अंदाज पर दिया एकदम से सटपटा गई। हवेली लौटने का फैसला तो बख्त निकाह के मौके पर ही सुना आए थे साहबा, तुम वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए बेखबरी पे हैरत हुई होगी। दिया ने संभल के गोश गुजार किया। आप कह रही हैं तो ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन भाई साहब को अचानक हार्ट अटैक की शिकायत समझ नहीं आई। कोई स्ट्रेस है भाई साहब? जहांगीर है ना, उनसे कह दें, जैसे उन्होंने ये मामला सुलझा दिया है बाकी भी सुलझा देंगे। साहबा मिलने की नीयत से आई थी। चौधरी बख्त उसी बाइस मुश्किल कमरे से निकल आए थे, और अब उनकी अजीबोगरीब बातें उन्हें हैरान कर रही थी। कौन सी बातें साहबा? खाना लगवाऊँ साहबा? खाने का वक्त हो चुका, बातें तो होती रहेंगी। साहबा की लन तरानियों से दिया को खौफ आने लगा था, कहीं चौधरी बख्त सब जान ना जाए। वो इस हाल में नहीं थे कि मज़ीद कोई सदमा बर्दाश्त कर पाते। तभी खाने का जिक्र कर बैठे। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, जहांगीर ने डिनर प्लान कर रखा है, हम बाहर ही करें। साहबा के इठला के बोलने पे दिया मुस्कुरा दी। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। नरमीन बेटी का मूड ऑफ लग रहा है, जाओ ना बेटा, बहन को अपने कमरे में ले जाओ। इससे पहले कि साहबा फिर कोई गुलफशानी करती, दिया ने बातों का रुख मोड़कर माहम को इशारा किया। वो कब से करीब ही बैठी थी, लेकिन नरमीन सोशल ऐप्स में बिजी होकर उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी थी। अब भी दिया के कहने पर वो सवालिया नज़रों से नरमीन को देखने लगी। मैं ठीक हूँ ताई जान, ग्रुप में चैटिंग चल रही है। वो ज़रा की ज़रा सर उठा के अपनी मसरूफियत का ऐलान करके सामने मौजूद लोगों की अहमियत को दो कौड़ी का कर गई। बस इन दिनों कुछ अपसेट है, बुरा ना मानिएगा। साहबा बेटी की तरफ दारी को आई। अपसेट क्यों? सब खैर है? अब जब उन्होंने अपसेट का शोशा छोड़ ही दिया था तो दिया का पूछना भी बनता था। जी, जो सच कहूँ तो मेरी नरमीन आप लोगों की वजह से अपसेट हुई। साहबा के बेधड़क बोलने पे सब चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमारी वजह से? चौधरी बख्त को हैरानी हुई। अच्छा भला बाबा जान और समहान का कराची आना तय हो गया था, बाकी सब भी आ जाते और जल्दी समहान और नरमीन का निकाह भी हो जाता। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। आपने बाबा जान को आने से मना करके मेरी बेटी की खुशी की राह खोटी कर दी। आपके हवेली जाने के फैसले ने हमारे सारे प्लान पे पानी फेर दिया, और अब इन दोनों का निकाह भी जान और रसपंद और फरियाल की उम्र से वापसी तक मौखिर कर दिया है बाबा जान ने। लिहाज मुरवत रवादारी साहबा इन तमाम लफ्ज़ों से नाबल थी। साफ सीधे अंदाज में उन्हें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा गई तो चल लम्हों तक कोई कुछ बोल ही ना सका। समहान और नरमीन का निकाह? यकीन करो साहबा, हमें ज़रा इल्म नहीं इस बात का। हैरत का इजहार करते दिया
चौधरी वक्त की तरफ देखने लगी कि शायद चौधरी जहांगीर ने बड़े भाई को एतमाद में लिया। उनकी नज़रों का मफहूम पाके चौधरी वक्त नफ़ी में सर हिलाने लगे। दिया ठीक कह रही है साहबा, जहांगीर ने मुझसे ऐसी कोई बात शेयर ही नहीं की, ना ही बाबा जान की तरफ से कोई इत्तला मिली, वरना हम क्यों बच्ची की खुशी ख़राब करते। चौधरी वक्त धीमी आवाज़ में दफा करने लगे। जहांगीर को याद नहीं रहा होगा, वैसे भी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुआ। मुमकिन है आपकी तबीयत के बायस बाबा जान को बताने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन अफसोस तो हो रहा है ना। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो साहिबा की बात पे कैसे रिएक्ट करे। नरमीन अलग मुंह बसोरे उन्हें मोड़दे इल्ज़ाम देते तासुरात सजाए बैठी थी। माहम ने एक नज़र नरमीन के चेहरे पर डाली और सम्मान के साथ उसे तसव्वुर में देख के सिवाय अफसोस के रंग फैलने के कुछ न हुआ। कोई टेंशन तो नहीं है सम्मान, सुबह हवेली पहुंच ही जाना था, लेकिन तब तक शाहजुर शमून को फिक्रमंद भी रहना था। तभी पल पल की खबर ले रहा था। तला हवेली पहुंच गया और उस पर मुकर्रर लोगों को हिदायत कर दिया कि जो भी हो जाए उसे सोने न दे, उसे हर पल जागते रहना और जाकर अपनी अजियत को महसूस करते रहना। नर्मो लतीफ़ जज्बे रखने वाला, फजला सुंजी के लतीफ़ पैराए में बात करने वाला सम्मान अफंदी दुश्मन को अजियत देने के लिए इस हद तक सोच सकता है, ये शायद उसके करीबी लोग भी ना जानते हो। वो दोस्तों का दोस्त और अपनों के दुश्मनों का ऐसा दुश्मन था जो घर में घुस के मारने का अज़म रखता था। उस वक्त तक ना सिर्फ तलहा की अच्छी खासी खातिर हो चुकी थी, बल्कि तलहा की पार्टी की तरफ से मुमकिना हमले का जवाब देने के लिए उसने उसके घर के अतराफ अपनी पार्टी को लगा रखा था, ताकि उनकी ज़रा सी भी मूवमेंट पर वो उन्हें उनका काम तमाम किया जा सके और उन्हें हवेली की तरफ रुख करने का मौका भी ना मिले। वेरी गुड, ये तो वाकई तूने बहुत अच्छा किया। दुश्मन को उसके घर में महसूर करना भी तेरा ही खासा है, और नींद से तरसाना, इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा। सारी तफसीलात जान के शाहजुर शमून सराहे बिना न रह सका। दुश्मन की इतनी मजाल कि हमारी हवेली की तरफ आके एक गोली भी दागे, इससे पहले ही उसके घर को मकबरे में बदल दूंगा। गैज़ो गज़ब देखने से ताल्लुक़ रखता था। इतना गुस्सा ना खा छोटी, तुझ पे फ़ख्र है। शाह बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तेरा ये रूप पहली बार देख के हैरत हो रही है कि मेरा छोटा इतना बड़ा हो गया, और उसके अंदर इतनी क्वालिटी भी है, वरना हर घड़ी तेरी दरगुजर और बातों से मामला सुलझाने वाली देख रहा हूँ। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया कि बाला ही बाला हवेली के मामला डील कर लेता है और किसी को खबर ही नहीं होती। बज़ाहिर इतना खलंडरा नज़र आने वाला सम्मान अफंदी अंदर से इस हद तक पक्का है मैं बाप हूँ, लेकिन शायद शाह की तरह मैं भी हैरानी का इजहार करूँ तो बेजा नहीं होगा। मैं भी आज तक तुम्हें नहीं जान सका। ऐसी कोई बात नहीं है डैड, कसरे नफ्सी दिखाए। बात तो इससे बढ़ के है, मैं हवेली में रहता ज़रूर हूँ क्योंकि मेरे अपने यहाँ हैं, लेकिन आज तक हवेली के लिए वो सब ना कर सका जो बात मैंने तुम में और शाह में देखी है। फिरोज़ भाई भी हवेली के लिए शायद इस हद तक ना सोचते हो जितना शाह या तुम सोचते हो। सच पूछो तो बाबा जान के सगे बेटे हम 4 भाई हैं, लेकिन उनके खून होने का हक सही मायनों में तुम और शाह ही अदा कर रहे हो। उनके हर हुक्म पे बिना चू चरा सर खम कर देना तुम दोनों का ही खासा। इतने ताबे और फर्माबरदार तो बाबा जान के तमाम बेटे भी नहीं रहे कभी, हम ना सही, लेकिन तुम दोनों काबिले तारीफ़ हो। होना तो ये चाहिए था कि हम बाबा जान का बाजू बनते, लेकिन सबको अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रहे। मुझ समेत सब ने अपनी पसंद की ज़िंदगी जी। वफ़ादारी का असल चेहरा किसी को देखना हो तो तुम दोनों को देख ले। चौधरी असफन पूरी सच्चाई से सराह रहे थे। हवेली में रहने के बावजूद कभी उनके रंग में ना रंग सका, और मेरी दूर भर कोशिश थी कि तुम पर भी हवेली का रंग ना चढ़े। चाहता था पढ़ा लिखा कर तुम्हें यूरोप में ही सेट कर दूं, लेकिन तुमने अब्रॉड की बजाय मुल्क से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने को तरजीह दी। तुमने कलम थामा, लेकिन तुम्हारी हथियारों से दिलचस्पी बचपन से ही रही, और आज ये देखकर खुशी है कि अपने घर फैमिली के तमाम तुम ही मुहाफिज हो। खून खराबा इन सबको नापसंद करने के बावजूद ये अटल हकीकत है कि इंसान में अपनी फैमिली का दफा करने की सलाहियत ज़रूर मौजूद होना चाहिए। प्राउड ऑफ यू माई सन। चौधरी असफन मोहब्बत व फ़ख्र से लबरेज उसके शाने पे हाथ फैलाकर उसका बाजू दबा गए। जो गिल्ट खुद से तमाम उम्र रहे वो औलाद की शक्ल में मिट जाए तो इंसान ऐसे ही जज्बात का इजहार कर जाता है जैसे उस घड़ी वो कर गए थे। शर्मिंदा ना करे डैड, मेरा या ब्रो का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो आप बड़ों के खून का है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। यह आपके खून की ही वफादारी है जो आज हम सुरखरू हैं। वो जज़ब से कहते बाप के हाथ पे हाथ रख गया था। तुम भी चलते ना हमारे साथ उम्रा पे। चौधरी असफन ने ख्वाहिश का इजहार किया। इस वक्त मेरा हवेली में रहना बहुत ज़रूरी है, और फिर बुलावे के बिना वहाँ कौन जा सकता है। मेरा बुलावा आया तो ज़रूर जाऊँगा, आप जाकर दुआ कीजिएगा। वो सहूलत से कह गया तो वक्त की नज़ाकत को महसूस करके चौधरी असफन भी सर हिला गए। इशाल भी उनके साथ जा रही थी। उसका ख्याल आते ही लब भिंच गए थे। वो वफादारी की कितनी बड़ी कीमत चुकाने जा रहा था, ये उसे ही इल्म था। आज अनुषा भी खैर से रुखसत हो गई। मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। क्या ही अच्छा होता जो जीते जी तुम्हें भी रुखसत कर देती। अनुषा की रुखसती के बाद घर में बेटी की जुदाई जैसा माहौल था। उसकी शादी की खुशी थी तो जुदाई पे दिल अफसुर्दा भी था।
میرے بارے میں اتنا مت سوچیے، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، ماورا یحییٰ اعلان کرتے ہوئے قریب کھسک آئے۔ منزہ کے ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بجھتے چراغ کی لو کب تک روشن رہے گی؟ کسی نہ کسی وقت تو بجھ ہی جانا ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں اماں پلیز، انوشا کے بعد پہلے ہی اکیلا پن کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، آپ تو جانے کی باتیں نہ کریں۔ منزہ کی یاسیت دیکھتے وہ تڑپ کے گویا ہوئی۔ انوشا نہیں تھی، اب دونوں کھل کے بات کر سکتی تھی۔ میرا جانا تو اٹل ہے، بہتر ہے تم ذہنی طور پہ تیار رہو۔ میرے جانے کے بعد ہر چیز کا دھیان رکھنا، ٹرنک میں کچھ چیزیں تمہارے لیے رکھیں۔ تم میری سمجھدار بیٹی ہو، کچھ حقیقت بتاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جاننے والے پر ہے کہ حقیقت جان کے نفرت کرتا ہے یا محبت۔ جو بھی ہو، زندگی میں تو انسان نفرت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مناسب لگے تو انوشا کو بھی بتا دینا اور میری خواہش کا احترام کرنا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ ان کی باتیں سن کے دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کچھ چیزوں کا سن کے دھیان فوراً اس ڈائری کی طرف گیا تھا، لیکن اس تک رسائی کی شرط منزہ کی موت تھی تو اسے وہ بھی گوارا نہیں تھا۔ سارے تجسس کو وہ آگ لگا سکتی تھی۔ نا امیدی کی باتیں چھوڑیے، انوشا کی شادی ہو گئی ہے، میں کل ہی ڈاکٹر بخت سے اپائنٹمنٹ لیتی ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا چلنے کا، کیوں وقت اور پیسہ گنوانے پہ کمر بستہ ہو؟ ایک بار پھر اس ذکر سے منزہ کو الجھن ہونے لگی، لیکن حامی بھر چکی تھی، اس لیے کھل کے انکار نہ کر سکی۔ آپ کی زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، آپ بس چل رہی ہیں میرے ساتھ۔ اس کے اٹل لہجے پر منزہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ کس منہ سے سامنا کرتی حویلی والوں کا؟ ماورا انہیں مشکل میں ڈال کر سو گئی تھی اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ساری رات روتی رہی۔ اس کے اشاروں پہ نہیں چلوں گی، حویلی گئی تو وہ اپنی جیت سمجھے گا اور میں اسے جیتنے نہیں دوں گی۔ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ جب اس طرح جانوروں کی طرح اس وحشی سے باندھنا تھا تو پہلے کیوں آزادی دی؟ زندگی کے سب سے اہم فیصلے پر بلیک میل کیا، مجھے نہیں رہنا اس درندے کے ساتھ۔ تھپڑ کھا کے دیا کی سلواتیں سن کے بھی اسے عقل نہیں آئی تھی۔ ماہم کا سمجھانا بھی بے سود گیا تھا، وہ اپنی ہی لگائی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ حویلی نہیں جائے گی، لیکن گھر رہ کے ایسا کس طرح طور ممکن نہیں تھا۔ وہ زور زبردستی سے ساتھ لے جاتا، پھر کیا کرتی؟ کوئی اس کے احتجاج کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی اس نے گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا اور سب کے سونے کے منتظر تھی تاکہ آرام سے نکل سکے۔ چھت پر محافظوں کا پہرا تھا، مین گیٹ سے ہی کہیں جانے کا بتا کر آرام سے نکل سکتی تھی، ورنہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کے باعث سارا پلان چوپٹ ہو سکتا تھا۔ کھانے سے اس نے انکار کر دیا تھا، دیا نے بلایا بھی لیکن وہ انکاری رہی۔ ملازمہ کمرے میں کھانا دے گئی تھی لیکن اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ منتظر تھی تو سناٹے کی، اور جب ہر سو سناٹا پھیل گیا تو وہ چھوٹا سا بیگ اٹھا کر دبے قدموں نکل آئے۔ رات کے آخری پہر محافظ بھی کچھ سست محسوس ہو رہے تھے۔ ایک آدھ کے علاوہ سب سو رہے تھے اور اس ایک کی ڈیوٹی تھی وقفے وقفے سے باؤنڈری کا چکر لگانا۔ مین گیٹ سے وہ بآسانی نکل سکتی تھی بنا کسی کو کانوں کان خبر کیے ہوئے۔ اپنے پیچھے دیکھتی، جوتی ہاتھ میں لیے وہ پیر دبا کے مین گیٹ تک آئی تھی۔ آٹومیٹک لاک کا بٹن دباتا ہاتھ موٹا سا تالا دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ یہ تالا کہاں سے آ گیا؟ تالا پکڑ کے وہ ازحد حیران تھی، حیرت بجاتی، اس سے پہلے کبھی تالے کو دیکھا جو نہیں تھا، شاید گزشتہ واقعے کے بعد سے اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہو۔ چابی تو گل خان کے پاس ہی ہوگی، اسے کیسے بولوں؟ چند ثانیے وہ جھنجھلاتی رہی۔ کوئی سوال کیا تو کیا جواب دوں گی؟ مالک میں ہوں، اس کی اتنی مجال کہ مجھ سے سوال کرے؟ نخوت سے سر جھٹک کے گیٹ سے متصل کمرے کی طرف بڑھی جہاں گل خان سو رہا تھا۔ گل خان، اوہ کون ہے؟ ہلکے ہلکے دیوار بجا کر بالآخر اس نے اسے جگا ہی دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے جاگنے کے ساتھ اپنی گن سیدھی کرنے لگا تو شنایا چودھری کا حلق خشک ہو گیا۔ میں ہوں شنایا، اس نے جلدی سے تعارف کرایا۔ بی بی آپ اس وقت؟ سب خیر ہے؟ اسے دیکھتے گن رکھ کے آنکھیں ملنے لگا۔ سب خیر ہے، تالا کھولو۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتی آگے چلنے کا حکم دے رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی جوتی پہن لی تھی۔ تالا کھولو؟ اتنی رات کو؟ اس کی تقلید کرتے وہ باہر نکل آیا تھا۔ کیوں؟ اتنی رات کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، پاپا کی دوا لینے ہاسپٹل جانا ہے، کھولو جلدی۔ بہانہ کرتے وہ اس کی کمر سے لٹکے چابیوں کا گچھا دیکھنے لگی۔ آپ اکیلی جائیں گی؟ اس کے بیگ کو دیکھتے نظریں سوالیہ ہوئی۔ سارے 007 ہیں، وہ بدبدا کے رہ گئی۔ اکیلی نہ جاؤں تو کیا پڑوس کے گھر سے بھی لوگوں کو اکٹھا کر لوں؟ تم تالا کھول رہے ہو یا نہیں؟ سختی سے اسے گھور رہی تھی۔ شاہ صاحب کو پتہ چلا کہ ہم نے آپ کو اکیلے جانے دیا تو بہت غصہ ہوں گے، اس نے تو تالا ڈال کے چابی دی تھی۔ اس شاہ صاحب کی تو وہ بل کھا کے رہ گئے۔ شاہ صاحب اس گھر میں مہمان ہے اور میں مالک، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی؟ ازلی نخوت سے گویا ہوئی تو گل خان کو گم و گو کی کیفیت میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گل خان روب میں آ گیا تھا، شکر کرتی وہ بھی تقلید کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تالا کیوں نہیں کھل رہا؟ جب ایک کے بعد دوسری چابی گل خان لگا کر نا امید ہونے لگا تو وہ بھنچے بھنچے انداز سے چلائی، پتہ نہیں بی بی صاحب نے تو یہیں چابی دیا تھا لیکن اب کھل نہیں رہا۔ گل خان بھی پریشان تھا، اتنی چابیوں کے بیچ نیند سے اٹھ کے خجل خواری، اوپر سے اس کا غصہ الگ تنگ کر رہا تھا۔ جب چابی دی ہے تو اسی سے کھلے گا، لاؤ مجھے دو۔
एक तो टाइम नहीं था, मज़ीद देर हो रही थी और चाबियों को गुच्छा लेके खुद ट्राई करने लग आई। क्या मुसीबत है? नाकामी पे वो झुंझलाने लगी। गुलखान, ताले की असल चाबी लो और बीबी के लिए गेट खोल दो। ताले में एक के बाद दूसरी चाबी डालते उसने बेतुजी से अकब से आती आवाज़ पर पलट के देखा था, हवा के दोष पे उड़ती हुई चाबी गुलखान के हाथ तक आई थी। चाबी की उड़ान को देखते गुलखान ने कैच करने के लिए हाथ फैला दिए थे। शाजिर शमून को देख के वो लड़खड़ा के 2 कदम पीछे हटी थी। बीबी, गेट खुल गया। गुलखान ने ताला खोल दिया था। वो पथराई आंखों से शाजिर शमून को देख रही थी, जो हाथ के इशारे से गेट की जानिब इशारा कर रहा था, लेकिन उसके कदम पथरा गए थे। वजह उसकी इस्तज़ाइया नज़रें नहीं थी, जो जता रही थी कि वो पहले ही उसके इरादों से वाकफियत रखता था। वजह तो उसके पीछे खड़ी दिया थी, जो हैरत की तफसीर बनी खड़ी थी और उन्हें संभाले माहम अफसोस भरी नज़रों से उसे देख रही थी। छोटी होने के बावजूद कितना समझाया था उसने, लेकिन नतीजा लाहासिल था। गेट तो खुल गया है, जाओ, जाती क्यों नहीं? दिया चंद कदम आगे आई थी। वो अपनी जगह साकित हो गई थी। रंगे हाथों पकड़े जाने की शर्मिंदगी थी। शाह ने जब कबल इस वक्त इस खदशे का इजहार किया तो मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा भी आया कि मेरी बेटी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन जब रात की तारीकी में चोरों की तरह अपनी बेटी को निकलते देखा तो अपनी सोच पे अफसोस हुआ कि मैं तो अपनी बेटी को आज तक समझ ही नहीं सकी कि अपनी ज़िद में वालिदैन ख़ानदान का नाम, हसब, नसब खाक में मिलाकर वो कितने आराम से भाग रही है। सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत में पाला और आज तुम उसी का हक अदा कर रही हो। खड़ी क्यों हो? जाओ ना, बीमार बाप की परवाह करो ना, माँ की तरबियत और इज्जत का। जाओ, जाती क्यों नहीं? दिया सदमे से चिल्लाने लगी थी। आगे बढ़ के उसे गेट से बाहर धक्का देने लगी, जिसके बायस वो चंद कदम हिल गई। चची जान, संभालिए खुद को। माँ, हम चची जान को कमरे में ले जाओ और चचा जान को खबर ना होने देना किसी बात की। गुलखान, अपने कमरे में जाओ। रोती बिलखती दिया को मुखातिब करके उसने माहम के हवाले किया। साथ ही गुलखान को हदायत दी तो वो चुपचाप चला गया। इसे जाने दो शाह, जहाँ मर्जी है इसकी जाने दो, समझ लेंगे हमारी बेटी मर गई। गुलोकीर लहजे में कहते दिया माहम के साथ लग गई थी, जैसे मज़ीद खड़ा होने की हिम्मत ना हो। क्या चाह रही हैं आप कि हमारे वालिदैन को कुछ हो जाए? पापा को आपकी वजह से हार्ट अटैक हुआ, अब मम्मा की हालत गैर हो रही है। चाह क्या रही हैं आप? अपनी खुदगर्जी में मत भूलिए कि ये सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी वालिदैन हैं और मैं आपको इन्हें दुख पहुंचाने की कतई इजाज़त नहीं दूंगी। जाइए, जहाँ जाना चाहती हैं चली जाइए। कम अज़ कम आपके रोज़ रोज़ के ड्रामों से तो निजात मिलेगी। बड़ी हैं आप, लेकिन अंदर से बहुत छोटी हैं, खुदगर्ज, बेहिस। किसी रिश्ते का मान नहीं रखा आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। माहम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। वालिदैन को इस हाल में देख के उसे शनाया पे शदीद गुस्सा आने लगा था। माहम दिया को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। दिया के लफ्ज़ और हारे हुए अंदाज उसने बगौर देखा था। एक पल को नदामत भी हुई। जिसने कदम जकड़ लिए थे चौधरी असफन बिस्तर पे थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का कहा था। उसकी ज़रा सी भी गलत हरकत उन्हें फिर से अस्पताल भेज सकती थी। दिया का टूटा हुआ मान उसे अपनी ही नज़र में छोटा कर गया था। तो छोटी बहन बेभाव की सुना गई थी। एक उससे जंग में वो सब भूल गई थी। अब सिर्फ वो दोनों रह गए थे। वो चंद सानिया कुछ सोचती रही थी, आया उसके अमल से सबसे ज़्यादा किसका नुकसान होना था? यकीनन उसके वालिदैन को ही होता। उसे ज़िज पहुँचाने के लिए वो और भी तो कुछ सोच सकती थी। हवेली कौन सा दुनिया के नक्शे से बाहर थी? जब यहाँ से भाग सकती थी तो हवेली से क्या मुश्किल था? यही सोचकर उसने अपने कदम अंदर की तरफ मोड़ लिए थे। गेट पीछे की तरफ है। उसे वापस अंदर की जानिब जाते देखकर उसने पीछे की सिमत इशारा किया। मैं बकई होशो हवास में अंदर ही जा रही हूँ। एहसान मानिए मेरा कि गेट खुला हुआ है, हाथ में बैग भी तैयार है, लेकिन मैं एक कदम भी बाहर नहीं निकाल रही। बेखौफी से उसकी आंखों में आंखें डालकर वो जलाने से बाज ना आई। शाजिर शमून के चेहरे पे इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। एहसान तो आपने वाकई किया है। वो चंद कदम करीब आया था, लेकिन मुझ पर नहीं, खुद पर। जो आजमाना चाहें तो आजमाने के लिए एक कदम भी इस खुले गेट से बाहर निकाल कर दिखाइए। अगला कदम उठाने से पहले जिस्म से रूह ना निकाल दूँ तो फिर कहिएगा। जेब में हाथ डालकर उसने इतने धीमे और सर्द लहजे में कहते पिस्टल की रौनुमाई कराई कि शानाया चौधरी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सुबह होते ही हवेली में हलचल का एहसास हो गया था। यूँ तो घड़ी ही हवेली में एक अफरा तफरी का आलम रहता था। तलहा की आमद हवेली के खुफिया मकाम पे मुंतकली मर्दों के अलावा शायद तीनों खवातीन को ही पता था। लड़कियों को उसकी हवा तक नहीं लगी थी। उमरा पे जाने की इतनी खुशी थी कि इशाल जहांगीर सब भूल गई थी। जाने चौधरी असफर ने चौधरी अशमत से किस तरह इजाज़त दी थी उसने जानने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया। उसे तो बस जाने से मतलब था। वो तो बस तैयारी में जुट गई थी। सॉफ्ट जूती, नया अबाया, कुछ हल्के लिबास रख लिए थे ताकि गर्मी का एहसास ना हो। आधी रात इसी तैयारी में निकल गई थी और अब जागी तो नाश्ते की मेज़ पर हलचल देखकर याद आया कि चौधरी वक्त अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए हवेली आ रहे हैं। कोई आए या जाए उसे किसी की परवाह कब रही थी। सब अपनी अपनी कुर्सी संभाल चुके थे। फायजा और फरियाल की कोशिश थी कि जल्द से जल्द नाश्ते से निबट कर दिन के खाने के साथ बाकी के काम भी अंजाम दे दिए जाएं।
भाभी, वक्त भाई साहब और बच्चियों के कमरे मैंने तैयार करवा दिए। फारिग होकर आप ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, कहीं कोई कमी लगे तो बता दीजिएगा। सालों बाद दिया भाभी हवेली लौट कर आ रही है, उन्हें कुछ बुरा न लगे। सब कुछ उनकी पसंद के मुताबिक करने की कोशिश की है, कहीं कोई कमी न रह गई हो। आप प्लीज़ देख लीजिएगा। नाश्ते की चीज़ें मेज़ पे सेट करती फरियाल आहिस्ता आवाज़ में फ़ायज़ा से महवे गुफ्तगू थी। तुम्हारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तुमने अच्छा ही किया होगा, परेशान ना हो, मैं देख लूँगी। फ़ायज़ा ने उनका हौसला बढ़ाया। चौधरी अशमत ने गला खनखारा तो सब चुप करने हो गए। ये वाज़ेह इशारा था कि वो कुछ कहने का इरादा रखते हैं। वक्त और उसकी फैमिली के लिए तमाम तैयारियां हो गई हैं ज़ुमर्द बेगम, देख लीजिएगा कहीं कोई कमी ना रह गई हो। मेरी बहुएं माशाल्लाह बहुत ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने सब कर लिया, लेकिन मैं देख लूँगी, आप बेफिक्र रहिए, ज़ुमर्द बेगम ने सहराने वाले अंदाज में कहा। तो दोनों का दिल बड़ा हो गया। चले, जब आप अपनी बहुओं की कार्यकर्दगी से मुतमईन है तो हमें क्या एतराज़ है। वक्त आ जाएगा, उसकी तबीयत जब तक बहाल हो जाएगी तब तक आप लोग भी उम्रे की अदायगी से लौट आएंगे। चौधरी अशमत की तमहीद बिला वजह नहीं लग रही थी। काफ़ी हद तक उन्हें जानने वाला समहान अफंदी उनकी अगली बात जानने के लिए कुछ बेचैन सा हो गया था। इशाल सर झटक कर उनकी बातों को काबिल एतना जाने बिना दिल जमे से नाश्ते के साथ इंसाफ कर रही थी। मारे गुस्से के इतने दिन ढंग से कुछ खाया नहीं था। असफन, जज्बाती बातें करके अल्लाह और रसूल के ड्रावे पर तुमने हमसे इजाज़त तो ले ली है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कोताही ना करना। इशाल के कान खड़े हो गए थे, यकीनन उसी के मुताल्लिक बात हो रही थी। समहान की नज़रें उस पर उठी थी। अंदाज तो ऐसा है जैसे इजाज़त दे के बहुत बड़ा एहसान किया हो। वो जल ही तो गई। रात रईस मियाँ की फैमिली का फ़ोन आया था। वो लोग निकाह की तारीख लेने के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन हमने निकाह से इनकार कर दिया। उन्हें निकाह के साथ रुखसती का भी कहा है। वो लोग मान गए हैं। आप सब लौट आएँ, फिर हम शादी की तारीख रखेंगे। अगले माह ही इशाल की रुखसती करने का इरादा है हमारा। इसके साथ ही हमने जहांगीर को भी ज़बान दे रखी है, तो सोच रहे हैं इशाल के साथ ही समहान और नरमीन का निकाह भी अंजाम दे दे। और अगर जहांगीर राज़ी हो गया तो शायद नरमीन की रुखसती भी इशाल के साथ अंजाम दे दे। अच्छा होगा, जहांगीर एक साथ दोनों बेटी के फ़र्ज़ से सबको दोष हो जाएगा। चौधरी हशमत अपनी प्लानिंग बता रहे थे। सब हैरत के एहसास तले अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए थे। स्पेशली लड़कियों को उन दोनों मिस मैच रिश्तों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो कुछ कहकर ख़ुद को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। समहान अफंदी की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। एक ही दिन, एक ही जगह, दोनों की शादी, दिन भी एक, मकाम भी एक ही तय हुआ था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि एक दूसरे से नहीं, दो अलग अलग बंदों से अजियत सी उसे सर भी ना उठाया गया। उस पर एक सुलगती नज़र डाल के इशाल जल के भस्म हो गई थी, लेकिन उम्रे पर जाना था। कुछ भी कहकर वह अपनी इजाज़त मनसूख नहीं करवाना चाहती थी। वापस आ जाऊँ, फिर रज के तमाशा होगा। वो सर झटक के रह गई। कब से देख रही हूँ, फ़ोन हाथ में लिए बैठी हो, तैयार नहीं होना तुमने? अनुषा का वलीमा था। दिन के लिहाज से उसने हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब किया था। नाश्ते के बाद उसने अपने और मुनज़्ज़ा के कपड़े इस्त्री कर लिए थे। उससे फारिग होकर वो वक्फे से कोई नंबर डायल कर रही थी, लेकिन शायद कॉल लग नहीं रही थी। तभी उसके चेहरे पर झुंझलाहट फैल रही थी, जिसे देखकर मुनज़्ज़ा टोके बिना न रह सकी। हॉस्पिटल कॉल कर रही हूँ कब से, लेकिन डॉक्टर बख्त का पीए कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। बात हो तो अपॉइंटमेंट ले लूँ, सरसरी सा बता के वो एक बार फिर सेल फ़ोन कान से लगा गई। जब अगला रिसीव ही नहीं कर रहा तो जाने दो, बाद में कर लेना, बंदा मसरूफ़ भी होता है। तुम भी उठ के तैयार हो, देर ना हो जाए। इस जिक्र से मुनज़्ज़ा को उलझन ही होती थी। बस जा रही हूँ तैयार होने, एक बार और ट्राई कर लूँ। वो बहला के लगी रही। सोच रही हूँ भाई शाहिद और साइमा को भी वलीमा में चलने का कह दूँ। अच्छे बुरे वक्तों में हमेशा काम ही आते हैं। यसरा बहन ने 25 बंदों को लाने का कहा तो था, लेकिन हमारे मेल जोल में तो 10 ऐसे लोग भी नहीं। ले दे के भाई शाहिद की फैमिली ही है। गलती कर दी जो कल ईशान को वलीमा में चलने का ना कह सकी। कल भी अर्जेंट बुलावे पर आ गया था। क्या सोचेगा, दावत देने का तौर तरीका ही नहीं हम लोगों को। लेकिन कर देती हूँ फ़ोन, फुर्सत हुई तो आ जाएगा। अच्छा बच्चा है। ख्यालात का इजहार करते मुनज़्ज़ा अपनी सोच को अमले जामा पहनाने का इरादा रखती थी। जो मावरा याह्या को एक आँख ना भाया, जिसका इजहार उसने साफ लफ्ज़ों में कर दिया। अम्मा, शान जहाँ से आपकी बढ़ती कुर्बत मेरी समझ से बालातर है। कहाँ आप गैर मर्दों की फैमिली से राब्ते से मना करती हैं। मोहल्ले के बेशतर घरों से हमारा मेल जोल नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी नज़र में उस घर के मर्द अच्छी नज़र नहीं रखते। औरतें आएंगी तो मर्द को भी राह मिलेगी, इसलिए आप कम ही किसी से मिलती हैं। और हमें भी पाबंद किया हुआ है। ज़ैनब ने कितनी मिन्नत की थी मेरी कि उसे मैथ्स पढ़ा दूँ। फ़ीस के लिए भी राज़ी हो गई थी, लेकिन आपने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उसके भाई की नज़र ख़राब थी और बहन को लाने के ले जाने के बहाने वो हमारे दरवाजे तक आता, और यही आपको पसंद नहीं था। जब सारी बात जानती हो तो जिक्र क्यों कर रही हो? मुनज़्ज़ा को एतराज़ हुआ
کہنے کا مطلب ہے کہ جب سارے مردوں کے لیے آپ کا ایک نظریہ تو پھر ایشان جہاں کے لیے الگ کیوں؟ مدعا بیان کر کے وہ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ منزہ کے چہرے کا رنگ واضح طور پہ بدلتا محسوس ہوا تھا۔ سب میں اور ایشان میں فرق ہے، وہ اچھی فیملی کا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ منزہ نظر چراتے دفاع کرنے لگی۔ جی اسی اچھی فیملی کے سلجھے باپ بیٹے نے مجھے دھمکیاں دی، شاید آپ فراموش کر گئی ہیں۔ محاورہ یحییٰ کا انداز نروٹھا ہو گیا۔ منزہ کا ایشان کی طرفداری کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ہو جاتی ہے غلط فہمی انسان کو، تم دل پہ کیوں لیتی ہو؟ جب تک اجنبی تھے تب تک لڑائی تھی نا، گھر آنے کے بعد سے اگر کبھی ایشان نے تم سے یونی میں بدتمیزی کی ہو تو بتاؤ۔ یونی کے شروع کے دنوں میں جو کچھ ہوا اس میں بھی تم کچھ کم نہیں ہوگی، تم نے ہی چیلنج کیا ہوگا۔ اب مرد تو ہوتا ہی اڑیل ہے، اسے چیلنج کرنے کھڑی ہوگی تو وہ کون سا پھولوں کے ہار سے سواگت کرے گا، اکڑ کے نیچا ہی دکھائے گا نا۔ شان نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا، لیکن دیکھ لو اب گھر آتا ہے تو کتنی شرافت سے تم سے بات کرتا ہے، اپنائیت سے گھر کے کام پوچھتا ہے۔ تم بھی اپنی سوچ کو بدلو اور دیکھو یونی میں کچھ الٹا سیدھا نہ کرنا پھر سے، میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ منزہ سارا ملبہ اس پہ ڈال کے تنبیہ کر رہی تھی اور وہ حیرت کی زیادتی سے مرنے کے قریب ہو گئی تھی، اس قدر حیرت زدہ تھی کہ ان کا آخری جملہ بھی گرفت میں نہ آ سکا۔ تم کھڑی حیران ہوتی رہو، جلدی سے تیار نہ ہو، ایشان کو فون کر رہی ہوں، جا کے شاہد بھائی کو بھی چلنے کا کہتی ہوں، تاکہ تب تک تیار نہ ہوئی تو بہن کے ولیمہ میں ساتھ نہیں لے جاؤں گی، گھر چھوڑ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کوئی سوال لے آتی، منزہ نے سامنے سے ہٹنے میں ہی عافیہ جانی مبادہ منہ سے کچھ نکل جائے اسے حیرت زدہ چھوڑ کے وہ شاہد صاحب کے گھر کی طرف چل دی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔